Fear has gripped Punjab yet again. After grenade attacks on police stations, miscreants have now turned their focus towards politicians. A blast has been reported outside the residence of Punjab Bharatiya Janata Party leader Manoranjan Kalia. This midnight explosion that you're looking at the aftermath on your screens as well has raised major security concerns. Reports suggest that the explosion occurred around 1 a.m., damaging a section of the house. The incident, of course, was caught on camera and the CCTV footage. More importantly, here's a report that we have for you. Take a look. बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का जो जालंधर में घर है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। ये शास्त्री मार्केट का इलाका है और यहीं पर उनका घर मौजूद है जहां ग्रेनेड अटैक देर रात किया गया है। इस वक्त हम उनके घर के सामने ही मौजूद हैं जहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ और सीसीटीवी फुटेज जो आई है वो दिखाती है कि किस तरीके से बेखौफ होकर ई रिक्शा में कुछ लोग आते हैं और यहां पर जो विस्फोटक है, जो ग्रेनेड है, उसको फेंक कर बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें में दिखाई दे रही हैं वो दरअसल इस जगह की हैं। यहां जहां पर आप बैरिकेड देख रहे हैं यहां से ई रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है। यहां से ई रिक्शा आया और मनोरंजन कालिया के घर की तरफ वो रिक्शा जाता है, लेकिन एक बार वो पहले क्रॉस करते हैं, सीधा निकल जाते हैं और आगे जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेडिंग है वहां तक ई रिक्शा जाता है। वहां से यू टर्न लेकर वो दोबारा ई रिक्शा यहां पर पहुंचता है और ठीक इसी जगह पर आके यहां से यू टर्न लेकर ई रिक्शा यहां पर आता है और ई रिक्शा को वो रोकते नहीं है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे चलते चलते जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उन्होंने ग्रेनेड फेंका इस घर के अंदर जो कि मनोरंजन कालिया का है और यहां से वो सीधा आगे की तरफ चले गए। अब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले। देखिए बिल्कुल ठीक यहीं पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इस तरह के कैमरे जगह जगह यहाँ पर मनोरंजन कालिया का जो घर है उसके आसपास लगे हुए हैं। इन तमाम जो कैमरा हैं इनकी वीडियो फुटेज पुलिस खंगाल रही है और बिल्कुल ठीक घर के सामने जालंधर नगर निगम का मुख्यालय भी है। आप यहाँ पर देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं पर नगर निगम का जो दफ्तर है वो भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, मार्केट एरिया है, बहुत कंजेस्टेड इलाका है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं अपराधी। और पंजाब में बीते 4 से 5 महीने में करीब 16 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। Punjab police rushed to the scene along with the forensic team. An FIR has been registered and the cops have also arrested 2 accused in this particular matter. According to them, the mastermind behind the grenade attack is identified as Zishan Akhtar, a close associate of jailed gangster Lawrence Bishnoi. Remember, Zishan is also wanted in the high-profile NCP leader Baba Siddiqui murder. The cops also believe that the attack was part of a larger ISI-backed plot to disrupt communal harmony in Punjab. Listen in. Within 12 hours 12 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ 2 ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ISI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ पैदा किया जाए, जो पंजाब पुलिस के इमीडिएट एक्शन लैन करके असी फॉइल कर देती है। जिहड़ा हुण तक इन्वेस्टिगेशन दे विच आई है कि एक ISI बैक्ड एक कॉन्स्पिरेसी सी जिन्होंने हैच किया एंड द प्लॉट वाज मास्टरमाइंडेड बाय ज़ीशान। While the probe continues, politics in the state is also heating up. The BJP and Akali Dal have trained their guns on the Maan government, accusing it of absolute lawlessness. The under fire AAP government, on the other hand, has promised strict action against the culprits. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ primary duty of any government, whether it is AAP government, Congress, BJP, Akali, whichever, any state, any government is securing law and order in the state. ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ, ਵੈਰੀ ਥੌਟ ਆਊਟ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਪਟਸ। मैं बड़ा गंभीरता नाल कह रहा साहब, वैदर इट इज़ भगवंत मान जी, वैदर इट इज़ द DGP पुलिस, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ फंग कत्तर रखे जिहड़े आए बैठे इत्थे।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਐਵਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੱਡ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਾय ਥੀਸ ਪੀਪਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। इतने सीनियर लीडर जिन्होंने टेररिज्म टाइम, मेरे ग्रैंडफादर, मुझे तकलीफ क्यों है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे एकदम भी, ये अमन शांति लाने वाले सरदार बेअंत सिंह जी, उनको भी बम से उड़ा दिया गया था। आज वही दिन दोबारा याद आ रहे हैं। आखिर उसी तरीके से ग्रेनेड हमले जो हाईएस्ट टॉलेस्ट लीडर हैं हमारे, उनके ऊपर ये, और ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो एक फैब्रिक एक डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अभी कहीं ना कहीं हिंदू सिख जो टारगेट करके सबसे हिंदू बड़े लीडर उनको टारगेट किलिंग की है। इसमें शक पता लगता है भी कहीं ना कहीं ये पूरा बहुत बड़ा जाल है जो बाहर से इंटरनेशनल जो लॉबीज बैठी हैं उसका ये काम है। क्योंकि एक हमारी बॉर्डर स्टेट है, मिनॉरिटी स्टेट है और बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। एक अनजान सरकार यहाँ पे आ गई मिस्टर भगवंत मान की, जिसने बिल्कुल ये काम, तमाम ये एजेंसीज की रिपोर्ट भी थी, लेकिन वो आदमी दिल्ली में विभव कोई नाम का आदमी है जो यहाँ पे कब्जा करके बैठा है। आधे एसएसपी, आधे पुलिस कमिश्नर उसके साथ हैं, आधे पंजाब के साथ, जो पंजाब की टीम है उनके साथ है। बहुत बड़ी अंदर लड़ाई है उनकी। वो चाहते हैं भी कोई ना कोई गड़बड़ दूसरी डिस्ट्रिक्ट में होती रहे जो भगवंत मान के नाम लगे। भगवंत मान के लॉबी आईपीएस आईपीएस चाहते हैं दिल्ली वालों के कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए उनके नाम लगे। पर जो बर्बाद है वो पंजाब हो रहा है। पंजाब के लोगों को जो है इस चीज का नुकसान या कष्ट उनको झेलना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक होता था तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं 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 ये वायलेंस गलत है, मगर वो आदमी बहुत नाराज था इसलिए उसने अरविंद केजरीवाल पे अटैक कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी दो मुंह वाला सांप है। हम मगर आधिकारिक तौर पे ये कहेंगे किसी भी तरीके की हिंसा गलत है और उसके पीछे कोई भी कारण हो वो हिंसा गलत है। उस हिंसा को हम दूसरे मुंह से ये नहीं कह सकते नहीं ये हिंसा ठीक भी है, वो गलत है और हम उसका जो है हम उसकी जो है निंदा करते हैं।